सबको नमस्कार, a warm welcome to everybody. We are all here for a very exciting online virtual program on India International Science Festival 2020, IISF 2020. Began in 2015, the journey of the scientific world to the masses. IISF, India International Science Festival, is the largest ever program being organized not only in India but across the world, where thousands of scientists, researchers, academicians come together from various organizations to showcase the stupendous scientific research developments for the benefit of large masses. How science can enlighten the life, how science for humanity, how science for society. It is themed with the vision of, yeah, I think Honorable Minister is ready now. We are going to start the program. Mr. Sushant and team. Yes. Ashwardhan sir has come. Sir, namaskar. नमस्कार. Very good morning to all of you. Our Honorable Minister, very powerful Harshvardhan sir, program to you. Today we are coming here for the fifth edition of India International Science Festival, IISF 2020. Perhaps the most exciting virtual event ever being organized on the globe under the leadership of Dr. Harshvardhan Sahab, Honorable Mantriji. We are here to start our proceedings of IISF 2020 with the Mega Science Expo. Now we are beginning. We are all clubbing here to start the inaugural function of the IISF 2020. First of all, I would like to welcome Honorable Minister for Science and Technology, Honorable Minister for Air Sciences, Honorable Minister for Health and Family Welfare of India, Dr. Harshvardhan Sahab, welcome to you to this program. And we are all very excited, very proud to see you. Sir, indeed, whenever you are seen appearing on the screen, especially during this lockdown period, जब भी आप आते थे सबको एक उम्मीद आता था. We are feeling like seeing a sun and getting a lot of energy. Seeing Dr. Harshvardhan sir, we used to get a lot of positive hopes, positive rays that yes, we can do something and we can come out of this pandemic. Whether even countries could not think of it that Harshvardhan sir has led this very challenging times to the most successful way across the globe. Sir, even it is your admirers not only in India, sir, across the world we have. There was a report that even from China also people are very much appreciating that sir for this program. Sir, welcome to IISF 2020 Expo inaugural program. Sir, welcome. Dr. welcome to the program. Today morning we are all here under your leadership. IISF 2020 we are going to begin today. And now I would like to welcome Dr. Shekhar Mande sir, Director General CSIR, who is the chairman for IISF 2020. Apart from this Mega Science Expo, we are having 41 events in this IISF program, and sir is coordinating the entire program of IISF. And I welcome you, sir, to this program of Expo inauguration in this morning. Shekhar Mande sir, welcome and namaskar. And now I welcome Mani Jayantrao Sahasrabuddhe ji, the organizing secretary of Vigyan Bharati, who is the guiding force behind all the Vigyan Bharati cadres across the country, along with the Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, and Ministry of Health and Family Welfare. Vigyan Bharati, VIBHA, has been conducting this IISF. It is the 6th edition of the IISF. Mani Jayanti ji, welcome to the program. I welcome now Dr. Sudhir Baduria sir, the Secretary General of Vigyan Bharati, to this event today morning. Sir, welcome to you, sir, also to you. And now I would like to request Shekhar Mande sir to kindly give the special remarks on the IISF proceedings of this year. Dr. Shekhar Mande sir. Thank you, Narenji. Honorable Minister of Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare, and our patron, Dr. Harshvardhan ji, Manya Jayanti Sahasrabuddhe, National Organizing Secretary, Vigyan Bharati,
Dr. Sudhir Singh Bhadoria, Dr. Ranjana Agarwal, all the guests who have joined here, a very warm welcome to ISF 2020 in the first place. One of the showcase events of ISF over the years has always been the Mega Science Expo, and this evokes probably the maximum response among the general public. As we have seen year after year, that people are very interested to visit the expo in many different places as what we saw in Chennai, in Lucknow, in Calcutta and all. And it is one of the major attractions, turned out to be one of the major attractions of the Indian Industrial Science Festival. Keeping in the same tradition, although the program is being held this year online, the IIF Expo would be conducted online, and I am very glad that at a very short notice, many people have responded positively to participate in the expo. We have, of course, the blessings of Honorable Minister Dr. Harshvardhan ji for the entire event, but also greatly privileged to have it during the inauguration of Mega Expo. Very welcome to you, sir, too, on this particular occasion. Welcome all of you, and let us wish Expo a big success, even if it is being conducted online. Thank you, Naren ji. Back to you. Thank you very much, Dr. Shekhar Pandey sir. Now, may I humbly request Mane Jayantrao Sahasrabuddhe ji to kindly give the theme address on the Atmanirbhar Bharat. Please, sir. सभी को नमस्कार। अपने IISF के मेगा साइंस एक्सपो के उद्घाटन के लिए पधारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर शेखर जी मांडे जो महानिदेशक है CSIR के, विज्ञान भारती के महासचिव डॉक्टर सुधीर जी भदौरिया, इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे विज्ञान प्रेमी और IISF के प्रतिभागी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज IISF का एक बहुत प्रमुख ऐसा कार्यक्रम मेगा साइंस एक्सपो का उद्घाटन आदरणीय मंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। प्रतिवर्ष इसको हम करते हैं और अक्षरशः लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम को आकर देखते हैं और अपने देश ने विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास किया है उसके बारे में एक आत्मविश्वास लेकर अपने घर घर लौटते हैं। इस वर्ष भी इस पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर यह सारा एक्सपो होने जा रहा है। ये इसकी विशेषता है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी विशेषता ये है कि 24/7 ये एक्सपो खुला रहने वाला है। तो इस साल केवल भारत के जहां पर ये कार्यक्रम होता था वहां के बंधु भगिनियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के अपने बांधवों को इस मेगा साइंस एक्सपो का आनंद उठाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने देश में जितने सारे विज्ञान अनुसंधान संस्थान हैं, उसके साथ साथ कई प्रकार के शिक्षा संस्थान हैं जिन्होंने विज्ञान के बारे में विकास होता रहता है। ऐसे सभी की सहभागिता इस साल इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुई है और सीमित कालावधि में, थोड़े से कालावधि में हमने लगभग 400 से भी अधिक संस्थाओं को इस प्रदर्शनी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर अपने देश ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की है उसको देखने का, अनुभव करने का बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त होगा। मैं केवल अपने ही देश के लोगों को नहीं, अपितु दुनिया भर के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ पर आने से आपको भारत का, केवल भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व के विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में किस प्रकार का योगदान रहा है वह आप देख सकते हैं और अपने देश की शान पूरे दुनिया में और ऊंची कर सकते हैं। इस साल हमने आत्मनिर्भर भारत विज्ञान के आधार पर कैसे बनेगा इसको तो हम प्रस्तुत करने वाले ही है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए भी भारत के विज्ञान का योगदान किस प्रकार से हो रहा है उसको भी इस प्रदर्शनी के द्वारा पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी का लाभ उठाए और एक मन के अंदर विश्वास जगाए कि अपना देश
विज्ञान के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद। नरेंद्र जी, यू आर ऑन म्यूट। नरेंद्र जी अनम्यूट करिए। हाँ डॉक्टर साहब, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। Now it is the time for the inauguration of the largest global virtual expo, not only in India, across the globe, how science can be showcased virtually. We are going to experience. Now, may I humbly request Honorable, very beloved Dr. Harshvardhan Sahab to kindly deliver the inaugural address, and after that to kindly inaugurate the proceedings for the ISF 2020 Mega Science Expo. Dr. Sahab, we humbly request you to kindly take. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे जी, विज्ञान भारती के संगठन मंत्री श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, उनके सहयोगी डॉक्टर सुधीर भदौरिया जी, IISF के इस 2020 के कार्यक्रम का संयोजिका के रूप में आयोजन में सहयोग कर रही डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी, आज के इस हमारे मेगा एक्सपो कार्यक्रम के संचालन के साथ जुड़े हुए जो वर्षों से इस काम को देख रहे हैं, ऐसे हमारे नरेंद्र शर्मा जी, बहुत बड़ी संख्या में हमारे विज्ञान मंत्रालय के, हमारे DRDO के, हमारे इसी प्रकार से जो दूसरे हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आइसर्स हैं, और जितने भी विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी विज्ञान से जुड़े हुए मंत्रालय, दूसरे भी जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे HRD से जुड़े हुए हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे दर्शक हैं, साइंस प्रेमी हैं, जो हमेशा लाखों की तादाद में पिछले वर्षों में एक्सपो को विज़िट करते रहे हैं, वो भारत में और दुनिया के अंदर आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और जैसा कि अभी बताया गया है कि पहली बार ये एक्सपो 24 घंटा खुलेगा, यानी देश में, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी जिस समय भी उसका मन होगा, जिस समय भी उसके पास समय की उपलब्धता होगी, उस समय वो कहीं दूर ना जाकर अपने ही घर में लिंक को इस्तेमाल करके अपने टेलीफोन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं पर भी वो पूरे एक्सपो को विज़िट कर सकता है और जितनी देर चाहे विज़िट कर सकता है। कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई समय का प्रेशर नहीं है, और जिस समय उपलब्ध हो, जब फुर्सत के साथ हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि मैं जब स्मरण करता हूँ पिछले 5 हमारे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स का, तो ध्यान में आता है कि एक एक स्टॉल इतना महत्वपूर्ण होता था कि हमको तो इनॉग्रेशन करने के लिए फीता कटवा कर और फिर चारों तरफ इतनी तेज़ी से घुमाते थे, हमको लगता था ये इसको घुमाने का हमारे को तो पर्सनली कुछ लाभ नहीं हो रहा। हमें तो लाभ तब होगा जब हम एक एक स्टॉल पर जाकर खड़े हों, एक एक स्टॉल को गहराई से समझें, और एक एक स्टॉल पर जितनी बातें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ज्ञानवर्धन हो। लेकिन वो सारे जो समय के प्रेशर्स होते थे उसके कारण ये कभी भी होता नहीं था। लेकिन इस बार की ये विशेषता है कि मैं भी चाहूँ तो जब भी
मर्ज़ी रात को आराम से जो है 4 घंटा बैठ के जो है इसको पूरा विज़िट कर सकता हूँ और सारे दुनिया में कोई भी विज़िट कर सकता है और पहली बार लोग गहराई से समझ सकते हैं कि जो आज साइंस के पैरामीटर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मानक जिनके अनुसार विज्ञान ने भारत में बहुत असाधारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति की है, वो सारी चीज़ों के अनुरूप क्या हमारी जो विशेषता है उसको हम देख सकते हैं। फिज़िकली नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा तरीका है, हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है वर्चुअल तरीके से वो सारी चीज़ों को विज़िट कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए इस बार का एक तरह से अचीवमेंट है कि शायद इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोग बड़ी संख्या के अंदर जो है बिना घर से बाहर निकले, बिना सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का कंजेशन किए, बिना अपने आप को कोविड के किसी भी खतरे के साथ जोड़े और वो पूरी सेफ्टी के साथ अपने घर में या अपने दफ्तर में अपनी टेबल पर कुर्सी पर बैठकर और वहाँ से सारी चीज़ों को देख पाएंगे। ये हमारे जितने भी अभी तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुए हैं उनका ये हमेशा पहला कार्यक्रम होता था और इस बार भी जो है ये हमारा पहला कार्यक्रम है। यद्यपि औपचारिक तौर पर शाम को हमारे प्रधानमंत्री जी 4:30 बजे हमारे इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन करेंगे, लेकिन हमेशा इस एक्सपो को जनता के लाभ के लिए थोड़ा पहले उसको खोल दिया जाता है ताकि जो है लोग उसके अंदर जाकर उसको विज़िट करना शुरू कर दें। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेने वाले यंग साइंटिस्ट के लिए, हमारे देश के ऐसे हमारे मैथमेटिशियन जिन्होंने कि सारे दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम रोशन किया, सारी दुनिया उनको जो है बड़े इज़्ज़त के साथ स्मरण करती है। ऐसे रामानुजन साहब का जो है आज जयंती है और ऐसे ही कारण से आज का ये दिन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को शुरुआत करने के लिए चुना गया और अगले 4 दिन तक एक के बाद एक इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, 3 दर्जन से ज़्यादा यानी करीब 3.5 दर्जन एक्टिविटीज़, 41 प्रकार की एक्टिविटीज़ जिसमें हम समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे। हमारे वैज्ञानिकों के अंदर हर स्तर का वैज्ञानिक यानी जो स्कूल में पढ़ रहा है और आगे भविष्य में वैज्ञानिक बन सकता है, जो वैज्ञानिक के तौर पर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो डॉक्टरेट कर रहा है, जो पोस्ट डॉक्टरेट है, जो यंग वैज्ञानिक हो गया है, जो बहुत एक्सपीरियंस वैज्ञानिक हो गया है, जो देश में है, जो दुनिया में है, जो इनोवेटर बन गया है, जो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर गया है, जिसने टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है। और खाली यही नहीं, दूर दराज के गांव में, आदिवासी क्षेत्र में, सब स्थानों पर जो हमारे बच्चे हैं जो कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, वो बच्चे हमारे इस कार्यक्रम के साथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जुड़ेंगे, जिन्होंने हर वर्ष हमको अपनी प्रतिभा के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर हमारा IISF का और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़ अगले कुछ दिनों में होने वाली हैं। विदेशों के मंत्री इसके साथ जुड़ने वाले हैं, भारत सरकार के मंत्री इसके साथ जुड़ने वाले हैं, देश भर की सरकारों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इस काम के साथ जुड़ने वाले हैं और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो कुछ भी संभव हो सकता है रूरल इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आज की जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, कोई क्लीन एयर के बारे में है, कोई स्वच्छ जल की उपलब्धता के बारे में है और कितने प्रकार के यानी विज्ञान की हमारी जो ऐतिहासिकता है, जो हमारी एंशंट जो विजडम है जिसने सारे दुनिया को गाइड किया है। विज्ञान का कोई म्यूज़िक के साथ संबंध है तो विज्ञान का कोई आर्टिसंस के साथ संबंध है। कितनी तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक और बहुत ही आनंद का समय है।
सभी IISF के ऑर्गेनाइज़र्स को, विज्ञान भारती को मैं इस समय पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी हमें आज आशीर्वाद देंगे, और जब समापन कार्यक्रम होगा तो देश के उपराष्ट्रपति जी हमारे को इस कार्यक्रम के अंदर आशीर्वाद देने वाले हैं। और वो जो समापन का कार्यक्रम है उसका दिन तो और भी ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है भारतवासियों के लिए, क्योंकि अटल जी को तो सबने अभी कुछ समय पहले तक बहुत नज़दीक से देखा है। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जिन्होंने विज्ञान को इतना महत्व दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कहा, और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके साथ जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है। तो मैं हृदय से बहुत बधाई देता हूँ सभी अपने IISF 2020 के साथियों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आज साइंस का और इंडस्ट्री का जो दोनों के मिले जुले कंट्रीब्यूशन के साथ जो ये एक्सपो अभी शुरुआत होगा जिसका, इसको लाखों की तादाद में लोग विज़िट करेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में तो हमारे फिज़िकल वाले को लोग विज़िट करते थे, तो वर्चुअल में तो शायद और ज़्यादा आसान है। अगर हम ठीक प्रकार से देशवासियों को ये संदेश पहुंचा पाए कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है, इसमें वर्चुअली जो है कोई भी रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकता है, विज़िट कर सकता है, खाली एक्सपो को ही नहीं बहुत सारे कार्यक्रमों में वो जुड़ सकता है, वो बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी, लेबॉर्ट्रीज़ की भी विज़िट्स अपने घर में बैठ के कर सकता है। तो फिर ये शायद हमारा इवेंट वास्तव में ऐतिहासिक बन सकता है। उसी भाव से अगले 4 दिन सभी लोगों को इसके अंदर जुटना चाहिए। खाली इवेंट हमने कर लिया, इवेंट हो गया या हर एक कार्यक्रम हो गया, लेकिन वो कार्यक्रम की सफलता वो जज होनी चाहिए उसमें कितने लोगों की भागीदारी हुई है। हर एक कार्यक्रम का एक डिटेल्ड ऑडिटिंग होना चाहिए और साइंटिफिक ऑडिटिंग होना चाहिए कि कितने लोग उसके साथ जुड़े और वो किस पैमाने पर उसकी सफलता अर्जित हुई, ताकि आने वाले भविष्य के लिए और बेहतर प्लानिंग करने में हमारी एक प्रकार से सोच कामयाब हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस एक्सपो की शुरुआत की घोषणा भी करता हूं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मुझे अभी ये दिया गया है रिमोट और इसके आधार पर ये हम आपको बहुत बहुत हमारे सबकी तरफ से डॉक्टर साहब हर्षवर्धन साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। We are all extremely thankful to you for kindly gracing this occasion in spite of your very busy schedule. And sir, जब भी आपको देखते हैं आपको हिम्मत आ जाता है, we get a confidence that yes we can fight. That spirit of fighting we are learning from you, sir. And we are extremely grateful to you, sir, for kindly inaugurating the ISF 2020 Mega Science Expo, the largest global science expo, and kindly with your very inspiring words and gracing this occasion. Thank you, Dr. Saab. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, Dr. Saab. और इसके साथ I will go to the next thing is Dr. Sudhir ji. Kindly please propose a vote of thanks to all the dignitaries and all the. We are having near about 1,000 stars, Dr. Saab, this bar, and with all DRDO, CSIR, DST, DBT, ICR, ICMR, Ministry of Health, all the laboratories are showcasing this on the virtual expo for 24/7, as you have very inspiringly mentioned, and everyone from all the corners of the globe can watch this, and they can interact with the scientists during their day hours, and they can leave in the chat boxes, they can leave their messages, and next morning we will answer to them, and we will also collect the email IDs and we will reply to them.
And sir, we are all extremely grateful to you. And Dr. Sudhir ji, please propose a vote of thanks. And after that, Dr. Saab, I humbly request everyone, Harshvardhan Saab and Shekhar Mandas and other dignitaries to kindly have a small visit in the expo. Now I hand over to Sudhir sir. आज के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित मेगा फेस्ट मेगा एक्सपो, जो इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग पब्लिक जनता की दृष्टि से होता है, इसके इनॉग्रेशन के समय पर उपस्थित माननीय हर्षवर्धन जी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर शेखर मांडे जी, डीजी CSIR, और रंजना जी, डायरेक्टर निश्चय, माननीय जयंत जी, हमारे सहयोगी, और शर्मा जी, एवं इस अवसर पर आयोजित अन्य सभी कार्यकर्ता बंधुओं, इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के बाद मैं सबसे पहले माननीय हर्षवर्धन जी को धन्यवाद प्रस्तावित करना चाहूंगा, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि इस कोविड-19 की परिस्थिति में न केवल भारतवर्ष को भी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के रूप में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया को चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि माननीय हर्षवर्धन जी की कितनी व्यस्तता होगी इस समय, लेकिन फिर भी हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि ISF हमेशा से ही आपके टॉप ऑफ माइंड में रहा है, और जब भी हम विज्ञान भारती कभी चिंतित हुई है कि अगले ISF की तैयारी करनी है, हमारा चिंता प्रारंभ होती है, उसके पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर वर्ष ऐसा होता है कि एक कार्यक्रम आ गया है कि ISF आयोजित करना है, जल्दी से बैठक आयोजित करें। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं आपने हमेशा ही इस कार्यक्रम को पैटर्नाइज किया है, इंस्पायर किया है, गाइड किया है, और फ्रंट एंड से मैं कह सकता हूँ लीड किया है। शायद आपके इंस्पिरेशन के कारण ही हम ये कार्यक्रम सतत हर वर्ष एक नई ताकत के साथ आयोजित कर पाए, और इसको हमने एक पीपुल्स मूवमेंट बनाने में एक महारत हासिल की है। आप सबको जानते हैं कि पीपुल्स मूवमेंट बना है, यही एक कारण है जबकि इस वर्ष हम कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में साइंस कांग्रेस आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन के कारण ISF को हमने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया है। हम आपके आभारी हैं और हमेशा आगे से आपकी इस तरह का सहयोग की अपेक्षा करते रहेंगे। मैं आभारी हूँ विज्ञान भारती की ओर से माननीय शेखर मांडे जी का, जो DG CSIR हैं, और उनके नेतृत्व में सारी CSIR लैब्स, और रंजना जी के नेतृत्व में निस्टेड सारी की लैब्स, सारे का सारा इस हम लोग जानते हैं कि इस सारे आयोजन की एक मूलभूत एक बन के निकल के आए हैं। हम आज के यदि कार्यकर्ताओं को धन्यवाद का प्रोविजन नहीं होता है, फिर भी मैं माननीय जयंत जी, माननीय प्रवीण जी को भी धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि उन्होंने हर गतिविधि का एक कंसेप्चुअल कहते हैं इसको बैकग्राउंड तैयार किया और एक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिससे माननीय हर्षवर्धन जी की इच्छा के अनुसार गत वर्ष 28-29 कार्यक्रमों के बजाय के स्थान पर इस वर्ष हम 41 एक्टिविटीज का आयोजन कर रहे हैं। हम आभारी हैं विज्ञान भारती की ओर से और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से सारी लेबोरेटरीज का, सारे डिपार्टमेंट्स का, जो नए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिफेंस, स्पेस, DBT, अर्थ साइंस, हेल्थ, और सारे विभाग ऐसे हैं जो इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे CSIR लैब्स, जिन इस पार्टिसिपेशन से हमारा ये जो एक्सपो इतना मेगा एक्सपो बन पाता है, और एक तरह की ये इनके पार्टिसिपेशन से हम जन जन तक विज्ञान ले जा पाते हैं और एक लैब टू लैंड जिसको कहते हैं ये कंसेप्ट हम पूरा कर पाते हैं। हम आभारी हैं सारे प्रेस, मीडिया और हमारी जो IT टीम है, जिसने इस तरह का एक जिसको कहते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बजाय वर्चुअल प्लेटफॉर्म के हमको उपलब्ध कराया है, और जिनके काम से
जिनके हम अभी एक्सपो के अंदर गए थे, तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हम लखनऊ के एक्सपो में है खड़े हुए रियल लाइफ। तो उनके बिना सहयोग से शायद ये संभव नहीं हो पाता। अंत में मैं विज्ञान भारती के सभी कार्यकर्ताओं और हमारे जो मुख्य डीएसटी और बाकी विभाग हैं, सीएसआर लैब्स हैं, उनके सभी वैज्ञानिकों का आभारी हूँ, जिनके सहयोग से ये एक बड़ा इवेंट हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। एक बार पुनः माननीय मंत्री को आभार व्यक्त करते हुए और इस आशा के साथ कि हमारा ये एक्सपो निश्चित तौर पर एक नए माइलस्टोन बनाएगा और 24/7 ही नहीं बल्कि 12 महीने हम इस एक्सपो को रिकॉर्डेड फॉर्म में इस अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों को प्रदर्शित कर पाएंगे। और माननीय मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है, उसका रियल लाइफ जो वो है वो यहाँ पर दिखेगा, जो हम अक्रॉस द वर्ल्ड सबको दिखा पाएंगे। सभी को आगे की गतिविधियों के आयोजन के लिए शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Dr. Sudeep sir. Thank you very much. Now I humbly request Honorable Mantri ji, Harshvardhan Sahab, may we request you to kindly visit the expo, and I request Jayant ji Bhai Sahab to kindly take Honorable Minister to various stalls. Please, Jayant ji, you may kindly take Honorable Mantri ji and other dignitaries, Shekhar Mande sir, Ranjana madam and other dignitaries, you may kindly have a view at the expo. Jayant ji, kindly help. ठीक है सुशांत। Sharmishta, cervical cancer has been a painful memory. It has claimed her mother, and the thought that her child could be at risk bothered her. But a visit to her gynecologist changed all that. Even though in India 1 in 50 women still die from cervical cancer, we can now prevent it with just 2 doses of the HPV vaccine. At RGCP, we are a trusted name when it comes to discoveries that allow better treatments for cancer, heart diseases, diabetes, and other serious chronic diseases. 23-year-old is infected with 10 deaths have been confirmed in There's a Kerala. rise in dengue cases across the country. State Health Ministry has issued a They're also on the rise in Punjab and Haryana. 13. For Dr. Thomas,